درود آل محمد کی ذات پہ مل کے پڑھیں بلند آواز میں. آپ تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے، ڈھیر سارے عزادار تشریف فرما ہیں. درود آل محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں. وقت بہت تھوڑا ہے، یہ بتانے کا وقت نہیں ہے کتنا وقت ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو جلدی جلدی سے آپ سارے نظر اللہ نے حسین آپ سارے 2 قدم آگے آ جائیں. آپ جتنے بھی ہیں، آپ وہ جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے گلدستہ بکھرا ہوا اچھا لگتا نہیں، آپ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں اور میں بات شروع کروں. آپ میں نے عرض کیا تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے. چھٹے امام، چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ خندہ پیشانی سے کھل کے درود بھیجے گا، میں جعفر صادق وعدہ کرتا ہوں قبر کی پہلی رات اس کی زبان میں لکنت نہیں آئے گی. اس کی جگہ یا میں بولوں گا یا میرے دادا علی بولیں گے. اس واسطے جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے علی محمد کی ذات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس انکل امجد کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. مالک اللہ مالک اللہ مالک اللہ امام حسین بادشاہ کے عزاداروں کی حفاظت فرما. میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں، خصوصاً چاچو منتظر بے اولاد ہیں، چاچو کاشف بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات و مومنین بے اولاد ہیں، تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خصوصاً انکل اصغر سمیت جملہ جتنے سادات و مومنین بیمار ہیں، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک جو جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، تجھے سخی حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے. اس دور کی دعا ہے، ہو سکے تو آمین کہہ لینا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گنہگاروں کو پردے والے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو. جتنی طاقت اور توفیق حسین بادشاہ نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے علی محمد کی ذات. سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں. اجازت ہے میرے سامعین. میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور لمبی طولانی بات میں نے کرنی نہیں. جو بانیان نے مجھے ٹائم بتایا بس اسی میں نے آپ کو سلام کرنا ہے. اگر آپ تھوڑا تھوڑا ماحول بنائیں، تھوڑا تھوڑا بولیں میرے ساتھ، تھوڑا سا ساتھ دیں، تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہے وہ چند لمحوں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو ایک جنت جیسا ماحول بن جائے گا. چونکہ میں مجمع کو دیکھ کے پڑھنے والا ذاکر ہی نہیں، نہ میرے جو میٹر کرتا ہے وہ وہاں تک مجمع لوگ کھڑے ہوں اور میں پڑھوں تب مجھے لطف آئے گا. نہیں، 4 بندے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، میرے معیار پہ بولنے والے بیٹھے ہوں، میں ان پہ بھی راضی رہتا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ سارے معرفت والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ داد دی تو پھر ملنی نہیں کہیں پہ. چلے 4 چھترے پڑھ کے میں آپ کو چیک کر لیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جنت غم شبیر کی ایک عشق کی قیمت. ذرا ہاتھ اٹھا لیں گے تو ذرا تائید ہو جائے گی. جنت غم شبیر کی ایک عشق کی قیمت اسرار سے فرما گئے یہ بانی اسلام. آپ کو پتہ ہے آپ پہ نا 24 گھنٹے کے اعتراض ہوتا ہے. بھائی کیا اب لوگ کہتے ہیں بھائی ہر بندہ خوشیوں پہ پیسہ لگاتا ہے، لگاتے ہیں نا. یہ شیعہ قوم واحد قوم ہے جو رونے پہ پیسہ لگاتی ہے.
अगर थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं निभा लूंगा। याद रखिएगा, आप हाथ उठा के किसी जाकिर पे एहसान नहीं करते, आप इमाम ज़माना की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करवाती हैं कि मौला मजलिस में मैं भी आया था, मेरा भी नाम लिखिएगा। मैं कह रहा हूँ जन्नत गम शब्बीर की एक अश्क की कीमत, जन्नत गम शब्बीर की। याद रखिएगा, ये उनके पास रिकॉर्ड जा रहा होता है कि हमारी मजलिस में बंदा बैठ के क्या कर रहे। जन्नत गम शब्बीर की एक अश्क की कीमत, जन्नत गम शब्बीर की। अगर बात में दम हो तो बोलिएगा, ना हो तो मैं आपको सलाम करूं। वैसे भी भाई हसनैन का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई। जन्नत गम शब्बीर की एक अश्क की कीमत। ये बस जहन में रखें कि मैं चौथी सतर नहीं पढ़ा, अपना अकीदा निकाल के मिंबर पे रख रहा हूँ। अकीदा अकीदे के साथ मिले तो बोलिएगा, ना मिले तो मैं आपको सलाम करूं। लोग कहते हैं भाई ये शिया रोते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, अल्लाह ने जहन्नुम बनाई इन्हीं के लिए, तुम्हें पता ही नहीं है। जन्नत गम शब्बीर की एक अश्क की कीमत। इसरार से फरमा गए ये बानी इस्लाम, वाइज मुझे लालच नहीं किसी कीमती शय की, जन्नत मेरी आंखों से टपकती है सुबह शाम। जिए सलामत रहे, आबाद रहे। जिस बंदे के हाथ की मलकियत अली के नाम है, हाथ उठा के हाय। इसरार से फरमा गए ये बानी इस्लाम, वाइज मुझे लालच नहीं किसी कीमती शय की, जन्नत मेरी आंखों से टपकती है सुबह शाम। बाखुदा में चूंकि पहली मजलिस तो पढ़ नहीं रही है इस जगह पे, इस मकाम पे, मुझे काफ़ी अरसा हो गया है मजालिस पढ़ते हुए। आपका वो मयार नहीं है, मिजाज नहीं है, थके हुए हैं तो मैं आपको सलाम कर देता हूँ। मैंने आगे आपको, आपके और मेरे छठे इमाम की बारगाह में एक बंदा आया, आके कहने लगा सरकार ये जुबान क्या है। सरकार फरमाती है बंदा खुदा जुबान होती है दो किस्मों की जुबानें होती हैं, एक अच्छी जुबान एक बुरी जुबान। अंकल असगर वो हैरान हो गया, सरकार जुबान तो एक ही है, एक अच्छी जुबान एक बुरी जुबान, क्या मतलब। सरकार फरमाती है जो जुबान गीबत कर ले, रोजमर्रा के कामों में बोल ले, वो बुरी जुबान है। जो हमारे जिक्र में आके बोले वो अच्छी जुबान है। तो सरकार फरमाते हैं ऐ बंदे खुदा याद रखना, कल तुम्हारी कब्र में तुम्हारी जगह हमने जवाब देनी है, तो फिर उनको कुछ रिटर्न तो करना है ना, खाली झोली तो वापस जाना नहीं। इतने बड़े अयाम चल रहे हैं, मैं एक मिन्नत करूंगा, नाराज ना होइएगा, मैं पॉइंट आउट नहीं करता, ये जिनके हाथ इस तरह बंधे हुए हैं ये हाथ खोल दे, क्योंकि ये देखे ना, ये हाथ खोल के मांगना पड़ता है आले मोहम्मद से। आज आप जिस इमाम को पुरसा देने आए हैं, मैं मसाइब नहीं पढ़ा, मैं फजाइल पढ़ूं। मैं चाहता हूं जितनी देर पढ़ूं मैं उन्हीं पे ही पढ़ूं, उन्हीं पे दो चार बातें कर लूं। हारून रशीद आया जिंदान के दरवाजे पे, ये बात समझिएगा। अब वो खड़ा हुआ है बाहर सड़क पे, सरकार है जिंदान के अंदर। हारून कहता तो कह दे तुझे मेरा डर नहीं, तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, फौज मेरे पास, तुझे मुझसे डर नहीं लगता। इमाम फरमाती है हारून मुझे पहचान हम कौन है, मुझे पहचान में कौन हूं। वो कहता कौन हो तुम। सरकार फरमाती है याद रखना हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है। हाय 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 हाय, हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है, जिस जा पे उतरते हैं वो काबा है हरम है। हाय हाय हाय, हम हैं तो जमाने में शरीयत का एक लफ्ज अंकल जी, अंकल असगर, अंकल खैरात इस्तेमाल होने चौथी सतर में पापोश। क्या लफ्ज है, सारे बोल दे, पापोश। पापोश किसे कहती है, जूते को। किसे कहती है, जूते को। ये जूता जहन में रखे, पापोश जहन में रखे। चौथी सतर आपके हवाले करता हूं, वो बंदा आज मजलिस से मेरा कत्ल करके जाएगा जो जिसने सुन भी लिया, समझ भी लिया, फिर भी उसका हाथ नीचे रह गया। सरकार फरमाती है याद रखना हम ही है तो जमाने में शरीयत का भरम है, जिस जा पे उतरती है मूसा काजिम बादशाह, आपके नौकर का हाथ नीचे न रह जाए। पापोश कहते हैं जूते को, हम ही है तो जमाने में शरीयत का भरम है, जिस जा पे उतरते हैं वो काबा है हरम है। हारून कहता है तख्त मेरे पास, मुस्कुरा के कहती है जिस चाहो जलालत पे तुझे नाजो नाम है, यह तख्त मेरी जाहिरी पापों से कम है। आए
हाय 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 जी, ये सलामत रहे, आबाद रहे। आपको सलाम है। मैं बात मुकम्मल करूं, मैंने आपको कहा आगे वक्त थोड़ा है, वक्त इतना है, इतना कलील वक्त है कि बताने का वक्त नहीं है कितना वक्त है। मैं आपके जल्दी जल्दी आपके हवाले बात करूं। सरकार फरमाती हैं हम ही हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है। इस बड़े पिंडाल में आप जितने भी बैठे हैं, जिस बंदे के घर का चूल्हा इमाम मूसा काजिम के सदके में जलता है, वो कम से कम इतना बोले कि इर्द गिर्द के हर बंदे को पता चले भाई आज मजलिस हो रही है, अली के नौकर जिंदा बैठे हैं। जरा सर उठाइएगा मेरी। चूंकि आप पढ़े लिखे अदादार मौजूद हैं, जाहिल तो मैं आपको कह सकता ही नहीं, क्योंकि अली का मानने वाला कभी जाहिल हो ही नहीं सकता। क्यों? अली जाहिलों की अक्ल में आ ही नहीं सकते। सरकार क्या फरमा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं हम ही हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है। जिस जा पे उतरते हैं वो काबा है, हरम है। मैंने मिन्नत की है जिस बंदे के घर का चूल्हा मुझ समेत इमाम मूसा काजिम के सदके में जलता है, उसके घर का चूल्हा इमाम की जूती के सदके में, उसका रिस्क इमाम की जूती का सदका वो जरूर बोलेगा। जिसका रिस्क इमाम नहीं भेजते, जिसका रिस्क इमाम का सदका नहीं है, माजरत के साथ वो दाद जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दाद की जरूरत नहीं है। सरकार फरमाते हैं हारून तख्त तेरे पास, ताज तेरे पास, फौज तेरे पास, इतना कुछ तेरे पास, ताकत तेरे पास, मुझको बता हम ही है तो जमाने में शरीयत का भरम है। जिस जा पे उतरते हैं वो काबा है, हरम है। जिस जाहो जलालत पे तुझे नाजो नाम है, मौला मूसा काजिम बादशाह आपका नौकर न चुप रह जाए। जिस जाहो जलालत पे तुझे नाजो नाम है, यह तख्त मेरी ज़ाहिरी पापों से कम है। वो कहता ताज मेरे सर पे, इमाम फरमाती है गार गार ताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है जिंदान के दर पे। हाथ उठा के हैदर हैदर है, जिसके हाथ की मलकियत अली का नाम है, हाथ उठा के हैदरी। कोई तबीयत लगी है जनाब की? गरताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है जिंदान के दर पे। अगर आप इजाजत दें, थके ना हो तो एक दो बातें मैं करता चलूं। भाई हसनैन आपका हुक्म की तामील हो जी। भाई अली रजा, मूसा दो गुजरे हैं। कितने मूसा? दो। एक मूसा नबी है। बच्चे बोल रहे हैं मालिक इनकी जिंदगी दराज करे। एक मूसा नबी है, एक है हमारे इमाम मूसा काजिम। आपको लुत्फ ना आया तो यकीन माने मेरी मेहनत जाया हो गई। लुत्फ आएगा लेकिन शर्त तवज्जो है। तवज्जो याद रखिएगा, अगर सरकार के जिक्र में आके आप जाकिर की तरफ तवज्जो ना करें ना तो ये वही बन जाता है भाई जन्नत के दरवाजे पे बैठ के सलमान से मुंह मोड़ लिया। तो तवज्जो रखा करें जितने भी बैठे हुए हैं। नबी मूसा और सरकार और आपके और मेरे 8वें इमाम के पास बंदा आया, कहता सरकार एक तो मूसा है वो नबी है, एक आपके बाबा है। सरकार वो भी मूसा, तवज्जो यह भी मूसा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपसे तो कीमत चाहिए। जो सैयद बैठे हैं उन पे वाजिब है बोलना, जो मेरे उम्मती भाई बैठे हैं गैर सैयद है, मैं उनसे लड़ के ले लूंगा। चले उस मूसा में और आपके बाबा में क्या फर्क है? इमाम फरमाती है ए बंदा है खुदा, अगर उस मूसा में तुम काजिम वाली सिफात शामिल कर दो तो वो मूसा काजिम बन जाता है। हाय 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 जी। अगर उस मूसा में तुम काजिम वाली सिफात शामिल कर दो तो वो मूसा काजिम बन जाता है। आप मुझसे क्या सुनेंगे, चले इतना टाइम ही नहीं है, मुख्तसर सी बात करूं। आपको पता होगा भाई जनाबे मूसा और जनाबे खिजर वाला वाकिया पता है ना सबको, जो पिछले सरदार बैठे हैं लिए आपके भी इमाम है। कम से कम थोड़ा सा इतना बोले मुझे पता चले जो मेरे आगे बैठे हैं वो जाग रहे हैं। जब
जनाब मूसा ने कहा मेरे अल्लाह मुझसे बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं। अब अल्लाह ने कहा मूसा गरूर मेरे सिवा किसी को नहीं सजता, और वो भी इसलिए कि क्योंकि मैं 14 का खालिक हूं। आए हाय हाय, गरूर भी इसलिए कि मैं 14 का खालिक हूं। मूसा जाओ खिज्र के पास तालीम के लिए। जनाब खिज्र के पास आए, वो सारा वाकया कि दीवार टूट गई, फिर बनाई, कश्ती में सुराख हो गया, बच्चा का, तो वो सारा मैं अभी आपको नहीं सुना सकता क्योंकि इतना वक्त ही नहीं है। जब जनाब खिज्र ने जनाब मूसा को तालीम दी तो कहते हैं मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। पहले मूसा कह रहे थे, आप खिज्र कह रहे हैं। अल्लाह कहता है खिज्र अभी भी नहीं, इम्तिहान तुमने भी देना है, इम्तिहान तुमने भी देना है। अच्छा मालिक अल्लाह, अब नहर के किनारे पे बैठे हुए हैं, एक परिंदा आता है, अपनी चोंच में पानी का कतरा लेता है, पीता नहीं है, ऊपर जाता है, फिर नीचे फेंक देता है, फिर दरिया में फेंक देता है। दूसरी दफा तीसरी दफा वो बड़े हैरान हुए। अंकल जी, जनाब मूसा कहती हैं खिज्र आप मुझे सारे रास्ते बताते हैं, मुझे बताइए क्या हो, ये क्या हो रहा है? भाई पीता नहीं है। आसमान में मार्फत वाला ना बोला तो मैं घर तक दुखी जाऊंगा। जिसको मार्फत भी नहीं आले मोहम्मद की, वो क्या करे बोल के जिक्र में? याद रखिएगा, बोलता वही है जिसका बोलना मेरे सातवें इमाम को पसंद है अपने जिक्र में, और कोई बोले ना बोले इससे क्या फर्क पड़ता है। पीता नहीं है, आसमान में जाता है, फिर वो पानी का कतरा समंदर में फेंक देता है। समझ नहीं आ रही दोनों को। या वहां खड़ा हुआ था एक बकरियां चलाने वाला, उलमा ने लिखा वो थे जनाबे जिब्राइल। जनाबे जिब्राइल करीब आए, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती या क्या हो रहा है। वो पानी पी नहीं रहा, वो कतरा अपनी चूंच में लेता है, आसमान में जाता है, फिर समंदर में फेंक देता है। जनाबे जिब्राइल फरमाती है जो तुम्हें नहीं पता वो मुझे पता है। जो दुख लगेगा अगर कोई सुन के समझ के चुप रह गया, जो तुम्हें नहीं पता वो मुझे पता है। वो कहती है कैसे? जिब्राइल फरमाती है पता चल गया तुम दोनों का इल्म आलिम आले मोहम्मद मूसा काजिम के सामने ऐसा ही है जैसे इस परिंदे की चूंच में पानी का कतरा है। हाय 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 जी, सलामत रहे आबाद। दरूद पढ़े आले मोहम्मद की जात पे मिलके बुलंद आवाज में। भाई मेहदी ये बात आ गए, इनका आना और मेरा जाना। आप जनाब थोड़ी थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ रखें। याद है हजूर? पढ़ लो थोड़ा सा, या दूँ आपको मेंबर? जी सलामत रहे आबाद रहे। तवज्जो है जनाब की? तुम्हारा दोनों का इल्म आलिम आले मोहम्मद के सामने ऐसे ही है जैसे इस परिंदे की चोंच पे पानी का कतरा है। मैंने आगे आपको अर्ज की है वो मूसा और है, ये मूसा और है। वो मूसा गुस्से वाला, जलाल वाला, ये मूसा है गुस्से को पी जाने वाले, गुस्से को पी जाने वाले। आप तवज्जो रखें और जुमला में आपके हवाले करूं, गुस्से को पी जाने वाले। जो लुगत ने काजिम का मसदर कुज्म, लुगत ने ना इसका बड़ा बेहतरीन एक मतलब बताया है। कुज्म कहती हैं उस चमड़े के तस्मे को जो पानी के मशकीजे के आगे बांधा जाता है। हाय हाय हाय, पानी के मशकीजे के आगे बांधा जाता है। जो परेशान होके बैठे हुए हैं वो मेरी तरफ देखे, मैं बात आपके हवाले करता हूँ। पानी के मशकीजे के आगे बांधा जाता है। वो क्या काम करता है? पानी को गिरने से रोकता है, पानी को गिरने नहीं देता। पता चल गया जो अल्लाह के जलाल को रोक के रखे उसे शरीयत में मूसा काजिम कहते हैं। जी सलामत रहे आबाद रहे। जो अल्लाह के जलाल को रोक के रखे उसे शरीयत में मूसा काजिम कहते हैं। आप सबको पता है, जो जवान बैठे हुए हैं जो यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का आगाज किसने किया?
امام جعفر الصادق نے درود پڑھ دے آل محمد کی ذات پہ مل کے بلند آواز میں. بھائی مہدی عباس تائید کریں گے. امام جعفر الصادق نے 6000 بچہ طالب علم سرکار کی یونیورسٹی میں علم حاصل کرتے ہیں. روز نہ ایک محفل لگتی ہے. انکل اصغر، بھائی حسنین، بھائی علی رضا، محفل میں ہوتا کیا ہے بھائی، بچے آتی ہیں اور میرے امام سے سوال کرتے ہیں. ایک دن ایک ضعیف آ گئے. وہ کیا پتا اس بات پہ میں 2 جملے مصیبت کے پڑھ کے آپ کو سلام کر دوں. بوڑھا ضعیف سرکار کی محفل میں آیا، زمین پہ بیٹھنے لگا. نہیں، آؤ میرے ساتھ تخت پہ بیٹھو. ساتھ بیٹھے. وہ کہتی ہے سرکار کچھ معاملات تھے، کچھ مسائل تھے جن کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. سرکار فرماتے ہیں آج پوچھنے آ ہی گئے ہو تو یہ میرا بیٹھا ہوا ہے موسیٰ کاظم، اس سے پوچھ لو. گولی کی طرح مجھے یہ بات لگے گی، اگر آپ نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر بھی آپ کا ہاتھ نیچے رہ گیا. سمجھ نہ آئے، آپ کا بھی اپنا مقدر، میرا بھی اپنا مقدر. میں تو جناب کو سلام کروں، جو میرے حصے میں مجھے وقت ملا تھا میں اسی میں آپ کو سلام کروں گا. ذرا سار اٹھائیے گا. تم نے کچھ پوچھنا ہے؟ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے موسیٰ کاظم، اس سے پوچھ لو. میرا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کا نوکر نہیں چپ رہ سکتا، اس سے پوچھ لو. وہ کہتا ہے سرکار آج آپ کا دل نہیں ہے جواب دینے کا، چلے میں پھر کبھی آؤں گا. یہ تو بچہ ہے، یہ مجھے کیا بتائے گا. سرکار فرماتی ہے نہیں پوچھ لو. اس نے کہا نہیں سرکار پھر کبھی آؤں گا، آج آپ کا دل ہی نہیں ہے، آج آپ نے جواب ہی نہیں دینے، یہ بچہ کیا بتائے گا. جب دوسری دفعہ کہا بچہ، امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر الصادق کی گود چھوڑی، کندھوں پہ ہاتھ رکھے. کہتی ہے خضر جو تم سے پڑھنے آیا تھا وہ موسیٰ اور تھا، جس سے تم پڑھنے آئے وہ موسیٰ اور ہے. ہائے 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 جی، سلامت رہے، آباد رہے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، بولتی ہوئی زبانوں کو اپنی امان میں رکھے. جو تم سے پڑھنے آیا تھا وہ موسیٰ اور تھا، جس سے تم پڑھنے آئے وہ موسیٰ. بھائی بتا رہے ہیں کوئی مومنہ بیمار ہے، مالک اللہ شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے. ایک بات اور، 2 جملے مصیبت کے میں آپ کو سلام کروں. جو تم سے پڑھنے آیا تھا وہ موسیٰ اور تھا. تھک تو نہیں گئے جناب؟ جس سے تم پڑھنے آیا وہ موسیٰ اور ہے. بھئی میں آپ کو بتانے لگا ہوں عالم آل محمد اور رسول خدا کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے. کتنا ملتا ہے علم. آپ سب نے سنا ہوگا بھی جب رسول خدا معراج پہ گئے تو کتنی دیر لگی، کنڈی ایک دفعہ ہلی، رسول واپس آ گئے. یا علی اتنی ہمت دیں، اپنی آخری بات انہیں سمجھا لوں، انہیں اتنی ہمت عطا کریں. ذہین مجمع پڑھے لکھے لوگ یہ سن کے سمجھ کے مجھے اس کی قیمت دے دیں. یاد رکھیے گا وہ زبان اچھی نہیں ہوتی جو چوک میں بول لے، گلی میں بول لے، بازار میں بول لے، محلے میں بول لے. میرے امام فرماتی ہیں ہمارے ذکر میں آ کے چپ رہ جائے. جس نے یہاں نہیں بولنا اس نے قبر میں بھی نہیں بولنا. یاد رکھیے گا، بات سمجھے میری. اور میں آپ کو سلام کروں. آسمان پہ معراج پہ گئے، کتنی انکل خیرات دیر لگی؟ بھائی مہدی عباس کنڈی ہلی، واپس آ گئے. ہوئے ہوئے ہوئے. آپ کی اور میرے صادق آل محمد کا ایک نوکر تھا صفان بن مہران. بہت یقین مانے وہ سرکار کے بغیر اس کا یقین مانے جی نہیں لگتا تھا. اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی جب سرکار اس کے قریب نہیں ہوتے تھے. ایک دن سرکار فرماتی ہے صفان مجھے کسی جگہ پہ جانا ہے، جاؤ شعلہ نامی ناکہ کو تیار کرو. آئے شعلہ نامی ناکہ کو تیار کیا، استبل سے نکالی. یا کیا دیکھا، امام موسیٰ کاظم سوار ہو گئے. میں بتانے لگا ہوں بھئی میرے امام کا رسول خدا کا علم کتنا ملتا ہے، صفات کتنی ملتی ہے. اگر اب بھی نہ کوئی بولے تو اس کا اپنا مقدر. کیا دیکھا، سوار ہو گئے، لگام پکڑی. صفان کہتا ہے میں ابھی سوچ رہا تھا یا میری نزلوں سے اوجل ہو گئے. میں نے سوچا سرکار کدھر گئے یا واپس آ گئے.
वो कुंडी हिलने वाली बात जहन में रखे। मैंने सोचा किधर गए या वापस आ गए, मुझे कोई मजाल नहीं, मेरी हजार मजाल। आप उठ के अगले साल तक बोले आपकी दात थोड़ी होगी, नौकर की बात बड़ी होगी, बस संभाल लीजिएगा, एजाज की बात होगी। वो कहते मैं सोच रहा था किधर गए या वापस आ गए, देखा नाका पसीने से शराबूस है। मैंने पूछा सरकार इन चंद लम्हात में कहां से हो गए कि नाका इतनी थक गई। मुस्कुरा के कहती है सिफान जो लम्हात तुम्हारे लिए चंद है, मैं उन लम्हात में अर्श पे हर उस जगह से हो आया हूं जहां शबे मेराज मेरा नाना मोहम्मद गया था। हाय 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 जिए सलामत रहे आबाद रहे। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मोहताज है। बोलती हुई जबानों को अपनी अमान में रखे। जहां शबे मेराज मेरा नाना गया था, अगर दुनिया इस अजमत को समझ लेती, इस इज्जत को समझ लेती, अज़ादाराने मजलूम करबला, बहन को चादर मिल जाती, भाई को कफन मिल जाता। बाखुदा बड़ा अच्छा आपने इस्तकबाल किया, क्योंकि वक्त कम है तो ज़्यादा लंबा तो मैं पढ़ नहीं सकता। दो जुमले तबरुकन। अब तो अंकल असगर वो लोग चले ही गए, एक हाय सबकी बाजमात मेरे कान तक पहुंच जाए और मैं आपको सलाम करूं कि पूरा मजमून पढ़ने की नौबत ही नहीं आती थी। एक जुमला पढ़ते थे बर्दाश्त ही नहीं होता था, कोहराम बरपा हो जाता था। मैं दूर क्यों जाऊं, मुल्तान के एक सैयद थे, धार धार शाह के नाम से मशहूर थे, सब तायद करेंगे। एक दिन क्यों धाड़े मार के रोते थे। सैयद बाजार में आए, क्या देखा कुछ मस्तूरात खरीदारी करके वापस जा रही थी। वो 4 कदमों पे गई, उनमें से एक पीछे रह गई। कहती है ज़ैनब जल्दी कर। जिनने समझे उनकी हाय आ गई है। 4 कदमों पे रुक के कहती है ज़ैनब जल्दी कर। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, उनने सड़क पार की, सैयद करीब गए, दस्तार खोली, हाथों पे रखी, रो के कहती है मेरी बेटियों जिनके दिल में कब्र हुसैन, जुमला उनके लिए, तुम में से ज़ैनब कौन सी बच्ची है। आगे बढ़ी, रो के कहती है बादशाह मैं हूं, सैयद मैं हूं। मुंह पे मातम करके कहती है अगर तेरा नाम ज़ैनब है तू बाजार ना आया कर। आगे भी है, किसी नाम की आई थी, लोगों ने उसे बड़ा मारा था, लोगों ने उसे बड़ा मारा था, तू बाजार ना आया कर। अज़ादाराने मजलूम करबला बड़े जुल्म हुए हैं, बहुत जुल्म हुए हैं। जब शाम के बाजार में, शाम से बाहर सादात का काफिला रुका रहा, इलामा हुसैन बख्श जारा साहब के जुमले 3 दिन अली की बेटी खड़ी रही। 15 अज़ानें अली बादशाह की बेटी ने शाम के बाहर सुनी। एक जुमला कहूं समझ आ जाए तो ये कयामत है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं एक लम्हा ऐसा आया कि मैंने शाम के बाहर अपने अल्लाह से मौत मांगी। सवाल करो कौन सा लम्हा जो माँ की गोद से शी है उसकी आय मेरे तक आनी चाहिए। कौन सा लम्हा, इसके बाद 2 जुमले और मैं आपको सलाम करूं। कौन सा लम्हा, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, सज्जाद फरमाती हैं जब एक हरामजादे ने मेरा कंधा हिला के कहा सज्जाद अब माँ को बाजार में ले आ। सज्जाद अब माँ को बाजार में ले आ। सज्जाद बदमाश आ गए, बाजार सज गए। शाम के बाजार में सैयदों का काफिला आया। अज़ादारों हर तरफ से आवाज आ रही है पत्थर मारो, गाजी की बहन आ गई। ये उधर एक नाबीना बैठा था, नाबीना पहली दफा रो के कहते कोई है जो मुझे गरीब की मदद करे। क्या करता, आवाज ही किसी को नहीं जा रही थी, हर जगह शोर था। पत्थर मारो गाजी की बहन आ गई, पत्थर मारो बागी की बहन आ गई। या उसने सदा अपनी आवाज बुलंद की, रो के कहते कोई है जो मदीने वाले अली के सदके में मुझे खैरात अता करे। महमल के ऊपर तड़प गई मेरी बीबी, रो के कहती है सज्जाद में गरीब बाप की बेटी नहीं। सज्जाद इसने बाबा का वास्ता दिया, इससे बोल जहां से मेरा ऊंट कदम उठाए
नीचे से दौलत जमा करता जाए, ऊंट कदम उठाता था, सोने चांदी हीरा जवाहरात जमा करता गया। कहते हैं अली का कोई इतना बड़ा बेटा, कोई सखी है जिसने मुझे इतनी दौलत दी। फिर कहते हैं जो मुझे इतनी दौलत दे रहा है वो मुझे आंखें भी दे सकता है। रो के कहते हैं कोई है जो अमीर अल मोमिनीन के सदके में मुझे आंखें अता करे। महमल के ऊपर तड़प गई, मैं नहीं मानता उसे शिया जिसकी हाय ना है। महमल के ऊपर तड़प के कहती है सज्जाद मैं गरीब बाप की बेटी नहीं, इसने बाबा का वास्ता दिया है, इससे बोल अपनी आंखों पे एक सिक्का लगाए, इससे बीनाई मिल जाएगी। इसने सिक्का लगाया, बीनाई मिल गई। इसने कहा पीछे मुड़ के देखूं तो सही, भाई कौन साली का बेटा है जो इतनी सखावत करे। इसने पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की, या मौला सज्जाद ने आंखों पे हाथ रख लिए, रोक के कहते देखने क्यों नहीं देते। सज्जाद मुंह पे मातम करके कहते पीछे न मुड़ी, अली का बेटा नहीं, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। या सैयदा अली का बेटा नहीं। आखिरी जुमला में सलाम करूं, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अगर अभी भी आप हाय ना कर सके एक दफा बीबी से माफी जरूर मांगिएगा। अदादारों यजीद के दरबार में हर बंदे को इनाम दिए जा रहे थे। यह एक बंदा आगे बढ़ा, कहता है यजीद मुझे इनाम ज्यादा चाहिए, मुझे इनाम ज्यादा चाहिए। यजीद कहता क्यों, तूने हुसैन को मारे? कहते नहीं। अकबर को बर्छी मारी है? नहीं। कासिम की लाश पामाल की है? नहीं। तूने खैमू को आग लगाई है? नहीं। तूने हुसैन की बहन की चादर उतारी है? कहता है नहीं। यजीद कहता है तूने किया क्या है? हंस के कहते हैं मैंने 36 शहरों में अली की बेटी को सोने नहीं दिया। सोने की कोशिश करती थी, मैं ताजियाना मारता था, रो के कहती थी बाबा बेटी उजड़ गई। अल्लाह लनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। जज़ाकुमुल्लाह। रोती आंखों से दुआ फरमाए मौला कायनात सैयदजादे की ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। मौला कायनात दुनिया के गमों से महफूज व महमूद फरमाए, नज़र बद से महफूज रखे। मौला कायनात बानी मजलिस की ये साया मैंने अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मौला कायनात आप अबाब जो दूर नज़दीक से चल कर आए हैं, इस गम के सिवा दुनिया के गमों से आपको महफूज व फरमाए। इमाम मूसा काज़म का सदका आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। आज की मजलिस की आखिरी खतीब बहरल मसैब ज़ाकिर अल-बैत मादी अब्बास बलोच साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से आपको मुसीब फरमाएँ। और ताबूत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की बरामदगी होगी, मातमदारी होगी। इनकी आमन करें नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान यकज़बा नारा हैदरी, बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात।